Welcome back to my YouTube channel. Today, friends, you must be surprised why I am appearing before you with the goggles. As you might have seen earlier, I am more fact oriented, now field oriented. So obviously, there must be something specific about this goggle. Just want to tell you that last week I got operated for left eye cataract, and coming Monday, this means day after tomorrow, I'm going to be operated for right eye cataract. So that was one of the reasons I could not bring a video to you last week. But my endeavor is that I will try keeping it on schedule. And this week I'm bringing one for you, and next week also I'll try, unless my eyes need little more rest. So hope you understand this. So if you are interested in a channel which brings facts, no frill, please subscribe to this channel. Today I am going to bring to you a topic which is very very important. 5 फाइनेंशियल मिस्टेक जो हमने जीवन में किए, और मैं समझता हूं कि आपको नहीं करना चाहिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो अवॉइड दीज 5 मिस्टेक्स or avoid these 5 financial mistakes in your life, which I have done. And in retrospect, based on 40 years of my experience in investing, I believe that these mistakes could have been avoided, and better don't do it. So let's get going. The first mistake. I started investing in stock market from 1983 to be precise, and first allotment came to me in terms of Raymond's convertible debenture. 5 debenture got allocated, which got turned into 5 shares, and some portion emitted in CD, non-convertible debenture. And it was the time of IPO, where IPO will come, it used to come at face value, and we had normal tendency to get the allotment. Listing happens maybe 2-3 times, sell it and enjoy the profit. So the first lesson: don't book profit in good companies. So you have to have a sense of a good company and a चालू company. Now चालू company IPO, आप जाइए, उसमें जो कुछ पैसे मिलते हैं, अलॉटमेंट आता है, बुक कीजिए प्रॉफिट. लेकिन जो गुड कंपनी है, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा गुड कंपनी का मतलब क्या है अपने उस समय से और आज के कंटेक्स्ट में, और उस पर आप ध्यान दीजिए. तो कंपनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एचडीएफसी बैंक, जिसकी की आईपीओ 1995 में आया था और 10 रुपए में अलॉटमेंट हुआ था. मुझे कुछ 1500 शेयर मिले थे, कई फोलियो थे, फोलियो मिला के टोटल 1500 शेयर मिले थे. और मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड का भी शेयर कुछ रहा होगा, जिसके चलते प्रेफरेंशियल मिले थे. तो 1500 शेयर्स का मतलब हुआ 15,000 का अलॉटमेंट मिला था. और जब उसकी लिस्टिंग हुई 5-6 दिन के बाद, या जो भी टाइम रहा हो, वो 4-10 के बदले 40 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई. तो ऑब्वियसली 15,000 बिकम 60,000. इट वॉज अ गुड सेलिब्रेशन टाइम. आई सोल्ड दोज शेयर्स and then enjoyed the profit. That is what I am asking you not to do. If I had not sold that shares, today 15,000 invested that time in IPO is worth 1.96 crores. It is worth 1.96 crores. Yes, you heard it right. Now I got 60K. I have not kept track of what I did with that money. But one thing is for sure. This type of stock, if you put profit, chances of sinking in some other stock is quite reasonably high. Therefore, all the prudent investors in the history of investing, they have proposed that whenever you get such shares in your hand, just sit on it. Because timing the market becomes very difficult and you have to just sit on it. At the same time, as I mentioned to you, कि अगर रन ऑफ द मिल का कोई शेयर है, मतलब छोटे मोटे कंपनी के शेयर है, जो कंपनी में आपको विश्वास नहीं है, उसको लीजिए और उसको बेच डालिए. यह पहला मिस्टेक आपको अवॉइड करना है. आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो रिसेंट टाइम में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हुआ है, आया था. वह शेयर करीब 130-140 रुपए तक गया था. काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया. मैं उसमें बैठा हूं. अभी 109-110 हो गया. उस पर आप रोइए नहीं, लंबे समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा. आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट, उसका जो आईपीओ का प्राइस था वो है, तो आराम कीजिए, सुकून के साथ बैठिए, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा. लेसन 2, उस समय इन्वेस्टमेंट के इतने अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करते थे, और काफी लोग जो ब्रोकर्स होते हैं या जो इस तरह की एजेंसी होती है, वो आपको पास आएंगे, यूलिप को प्रपोज करेंगे. यूलिप में क्या था कि ये इंश्योरेंस है इतने का और इतना का रेंटेड रिटर्न आ जाएगा, मिनिमम इतना रिटर्न आएगा. तो अपीयर वेरी लुक्रेटिव, बिकॉज उस समय क्या होता था कि हम उसको एफडी से कंपेयर करते थे, तो ये अच्छा रिटर्न दिखता था, और उसमें हमने कुछ इन्वेस्ट किया, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था. बट दोस्तों, आज जब मैं शेयर बाजार में इतना दिन बिता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. नेवर मिक्स योर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस. यूलिप इज अ प्रोडक्ट व्हिच इज इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस. सो ऐसे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए. जैसे आपको मान लिया कि 3 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है, तो 3 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और
जो पैसे बचते हैं यूलिप से, जो बचे हुए हैं उसको एसआईपी कर दीजिए या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक इन्वेस्ट करने का एक प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ते नहीं है तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, या बहुत अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, तो फिर उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी सलाह है कि इस केसों के लिए आप टर्म इंश्योरेंस चूज करें और एसआईपी चूज करें। दैट विल गिव यू अ मच बेटर रिटर्न इन टाइम टू कम। अगर इन दोनों के विषय में कुछ अगर सलाह चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, मुझे लिखिए। मैं अपने योग्यता अनुसार, मैं अपने क्षमता अनुसार आपको बिल्कुल सहायता करूंगा, उसकी चिंता न करें। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप शेयर बाजार में जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि भाई पैसा तेजी से बने, बहुत जरूर बने। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे जो फ्रेंड होते हैं, कलीग होते हैं, इधर उधर के लोग होते हैं, उनसे टिप्स ले के ऊपर ध्यान देते हैं। नेवर गो ऑन टिप्स, रेदर क्रिएट योर ओन डेटा मॉडल। का मतलब क्या हुआ कि आप एक खरीद और बेचने का एक मेथड बनाइए, अपना मेथड बनाइए। मैं बोलता हूं उस मेथड से आप गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरा कोई बोलता है उसे गाइडेंस ले सकते हैं, ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं कीजिए और उस मॉडल के हिसाब से खरीदिए बेचिए। जो बहुत अच्छा शेयर है लंबे समय के लिए रखिए, जो थोड़ा सा उतना अच्छा आपको नहीं दिखता है उसको थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। डोंट गो ऑन टिप्स। चौथा पॉइंट, शेयर बाजार में जो लोग आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि भाई रातों रात टाटा बन जाए। आप जानते हैं कि टाटा रातों रात नहीं बने, उन्होंने कितनी रोटियां सेकी, कितनी उन्होंने बहुत सारे बेलना बेले। कहने का मतलब यह है कि आप बाजार में जब रहेंगे लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न आपको बड़ा ही लुक्रेटिव होगा, लेकिन आपको उसके साथ चलना होगा। ओवरनाइट आप हीरो बनने की कोशिश न कीजिए। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वहां उनको एक लगता है कि रातों रात हम हीरो बन जाएंगे, रातों रात हम 50 गुना 100 गुना सब्सक्राइब कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यह नहीं होता। सेबी एक सीरीज चला रही है सारे बिजनेस चैनल में, जिसमें वो कहती है कि 93% ऑफ दी एफएनओ इन्वेस्टर, फ्यूचर और ऑप्शन इन्वेस्टर, दे लूज मनी। आपको किसने विश्वास दे दिया कि आप उस 7% पे होंगे? अगर आप उतने ही कैपेबल है, उतना तेज है, तो मे बी यू कैन मेक यू रियलाइज 7%, तो 2-3% ही है जो एफडी से अच्छा रिटर्न बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, रातों रात रिच होने का सपना नहीं देखिए। यह सपना आपको सोने के लिए अच्छी नींद भी नहीं देगा शायद, इसलिए उसे दूर रहिए। आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेट। आप एक खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, आप कछुआ बनना चाहिए, कछुआ बन के रहिए, स्टडी रहिए। रात बड़ी लंबी जॉब लगाने की कोशिश नहीं कीजिए। इन्वेस्टमेंट का या बहुत मूलभूत रूल है, ये आपको अच्छा मौका देगा। फिफ्थ पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1992 में मुझे याद है कि फ्रॉडलेंट कंपनियां आती है, हर समय आती है, आज भी आ रही है। आज भी बहुत इन्वेस्टमेंट कॉल होंगे जो बहुत एंकर को फोटो लगा करके अपना फेसबुक का साइट बना करके आपको चीट करने की कोशिश करते हैं। उस जमाने में ये सब उतना था नहीं, लेकिन टिक प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा बीमारी चला था। साउथ इंडिया में काफी कंपनियां 50 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, जिसमें 42 चेन्नई से थी, मतलब तमिलनाडु की थी, और करीब 8-10-12 कंपनियां कर्नाटका की थी। ए ह्यूज रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे। जब भी कोई बोले कि महीने में आप काम डबल करते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा कभी होता ही नहीं। अगर ऐसा ही होता तो सब पैसा तो करता आदमी, तो कभी अपना पैसा डबल नहीं करेगा और दूसरे के पैसे को डबल कहां से कर पाएगा? तो ये लोग पैसे लेके गुल हो जाते हैं। तो उस समय जितने लोगों ने टिक प्लांटेशन में पैसे डाले, एंड बिलीव मी, दे क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल स्केच, सच अ ब्यूटीफुल ब्रोशर, सच अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस, वी ऑल टेंड टू बिलीव इट। ऑल्दो मैं अपना पैसा उसमें नहीं लगाया था, लेकिन हमारे कुछ मित्र थे जो उसमें फंस गए, और मैं उनकी अनुभव को यहाँ बता रहा हूँ। अदरवाइज तो 4 पॉइंट हमने बताया है वो हमारा पर्सनल अनुभव भी है, हमने भी गलतियां की है। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको मून प्रॉमिस करता है तो उस पर सावधान रहे। 2000 फ्रॉडलेंट स्कीम्स, उस पर बहुत ध्यान दे। देयर नथिंग लाइक फ्री लंच इन लाइफ। चाहे वो कोई अगर आप लड़की है, कोई लड़का अगर आप फ्री लंच ऑफर करता है तो उसके इंटेंशन को देखिए, या अदरवाइज ऑल्सो। सो इधर वे एनीथिंग, देयर नथिंग लाइक फ्री लंच इन लाइफ एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपके सामने 5 लेसन लाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। अगर इस 5 लेसन्स को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। मैं सटली चाहता हूं कि इस मिस्टेक को आप कमिट न करें और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। पहला था, डोंट बुक प्रॉफिट इन गुड कंपनीज, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। सेकेंड, differentiate between investment and insurance, don't invest in schemes like ULIP. Third point था, don't go on tips, develop your own model. You may follow somebody model but try to customize as per you. That is very, very important.
चौथा है कि ओवरनाइट रिच बनने की तमन्ना ना रखे, एफएनओ में इन्वेस्ट ना करे। और पांचवा है कि फ्रॉडुलेंट लोगों से दूरी मेंटेन करे, चीट से दूरी मेंटेन करे। अगर आप इन पांचों सलाह को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपकी सफलता को थोड़ा टाइम लग सकता है पर कोई रोक नहीं सकता। सो मुझे लगता है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक बटन प्रेस करना नहीं भूलिए। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल which brings to you facts and no frills. You can be assured about 100% honest recommendations as per my capability. My capability has a problem, I can't help it दोस्तों। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।